Hi everyone, a very warm welcome to everyone in this today's session. And today we are going to see the last scene of your class 11th. Okay, this is the last scene of Act 2 as well as the last scene of your class 11th. After that, your class 11th syllabus will be finished. Okay, as you all know, Act 1 and Act 2 are concerned with your class 11th syllabus. Okay, they are concerned with your class 11 syllabus. We have completed Act 1. Now today we are going to complete Act 2 as well. Now your class 11th syllabus will complete it. Okay, now from Act 3, that is Act 3, Act 4 and Act 5, they will be your class 12th syllabus. Okay, I don't know about your school, means perhaps many schools do not follow the pattern of board, isn't it? But in your board examination, in your class 12th board examination, you will be asked just the questions from the Act 3, Act 4 and Act 5. Just you will be asked a question from the Act 3, Act 4 and Act 5. The questions will not come from Act 1 and Act 2 because they are already done in class 11th. Okay, so let's see about Act 2, Scene 4 of Macbeth, which is going to be your last scene for class 11th. Now let's see the previous scene. Let's revise the previous scene, that is Act 2 Scene 3. Now you all know that Act 2 Scene 3 जो था वो क्या था? It was the Porter's scene. वो क्या था? Porter's scene था. Porters कौन होते हैं? Porters वो गेट कीपर्स होते हैं जो साउथ गेट पे खड़े होते हैं, isn't it? हमने Act 2 Scene 2 में देखा था कि लेडी मैकबेथ जिन गार्ड्स को ड्रिंक करा देती है, जिन गार्ड्स को वाइन पिला देती है, वही सेम गार्ड्स Act 2 Scene 3 में पोर्टर्स का काम करते हैं. ओके, सो Act 2 Scene 3 जो था वो एक पोर्टर्स सीन था. पोर्टर्स सीन की सिग्निफिकेंस क्या है? पोर्टर्स सीन क्यों रखा गया? इसकी सिग्निफिकेंस ये थी जिससे कि जो लेडी मैकबेथ और मैकबेथ है, दे कैन चेंज देयर अपैरल्स, दे कैन चेंज देयर अटायर्स. ओके, Macbeth and Lady Macbeth, they can change their apparels, their attires, their clothes. That's why the porter came there. Okay, that's why porter came there. And इसमें Act 2 Scene 3 में जो porter है, okay, जो porter है, that is personified with the hellman of the with the soldier of the hell gate. Okay, with the guard of the hell gate. The porter in this Act 2 Scene 3, that is like compared with the hellman of the gate of hell, means the guard of the hell, isn't it? जिसमें काफ़ी सारा जो भी लोग आ रहे थे, ओके, जितने भी लोग आ रहे थे मैकबेथ के कैसल में, वो सब किससे पर्सोनिफाई किए जा रहे थे? टू द डेविल्स, टू द सैटन ऑफ द हेल. जैसे कि फर्स्ट वन वॉज द बिल्जेबब. Okay, who came here? Beelzebub कौन था? It was the main Satan in the hell, isn't it? किसे Beelzebub बताया गया था? The farmer. Okay, the farmer was personified with the Beelzebub. Then second was the equivocator, who was the storyteller, isn't it? Equivocator कौन होते हैं? जो indirect, unclear answers को respond करें. Okay, उनकी responses clear ना हो, वो दोनों पक्ष पे अपना वो करें, अपने conclusions को बताएं. थर्ड जो था वो कौन था? थर्ड वन वॉज द टेलर, इजंट इट? थर्ड वन वॉज द टेलर, जो क्या करता है, जो थोड़ा सा फैब्रिक, थोड़ा सा क्लोथ जो है वो चुरा लेता है, इजंट इट? तो ये लोग जो हैं वो पर्सोनिफाई किए गए हैं एज द डेविल, एज द लाइक अ सैटन. ओके, एंड हु आर कमिंग इन द हेल, दे वर कमिंग इन द हेल. हेल मीन्स इन द castle of Macbeth. Okay, so that was all about Porter's scene. Okay, now let's see about Act 2 Scene 4. Okay, this is going to be your last scene. As I told you, this is going to be your last scene. So this scene is also known as the chorus scene. सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं कि Act 2 Scene 4 में क्या है. This scene is a chorus scene, जहाँ पे जो कैरेक्टर्स जो हैं, ओके, दे विल कमेंट, वो कमेंट करेंगे किस पे? इवेंट्स पे. प्ले में जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, ओके,
और सब पर जो कैरेक्टर्स हैं दे विल कमेंट अपॉन द लाइक इंफॉर्मेशन विच वॉज प्रोवाइडेड। इसलिए इस सीन को हम क्या कहते हैं, कोरस सीन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इस सीन को हम क्या कहते हैं, कोरस सीन कहते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सीन एंड लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। एक्ट 2 सीन 4 जो है, ये सीन बहुत छोटा सा है जिसमें रॉस की कॉन्वर्सेशन चलती है किससे, एक ओल्ड मैन से। ओके, अब यहाँ पे जो ओल्ड मैन है वो कहता है कि जो स्ट्रेंज जो नाइट थी, लास्ट नाइट थी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज थी। ओके, दैट वॉज वेरी स्ट्रेंज। उसने 70 ईयर्स में ऐसी नाइट कभी नहीं देखी। ओके, उसने 310 में ऐसी नाइट कभी नहीं, 310 वो मैं बताऊंगा अभी आपको क्या कैसे क्या। ओके, तो ये सारी कॉन्वर्सेशन चलती हैं किन के बीच में, 3 लोगों के बीच में चलती है, ओल्ड मैन, रॉस, देन मैकटफ। बस ये बहुत छोटा सा सीन है, तो लेट्स स्टार्ट द सीन एंड लेट्स डिस्कस द सीन। सो ये भी सीन कहाँ का है, मैकबेथ के कैसल का है, बट इट इज़ ऑफ आउटसाइड। ओके, सीन 4 टेक्स प्लेस आउटसाइड द मैकबेथ्स कैसल। ओके, वेयर एंटर रॉस एंड ओल्ड मैन। रॉस कौन है, रॉस को ही यहाँ पे कोरस का नाम दिया गया है। रॉस कोई नहीं है, रॉस ही यहाँ पे कोरस है। ओके, रॉस यू ऑल नो ही इज़ द थैन ऑफ स्कॉटलैंड। वो कौन है, स्कॉटलैंड का थान है, बट ही इज इन द सीन इन एक्ट 2 सीन 4। रॉस इज नथिंग बट अ कोरस। रॉस को यहाँ पे क्या बताया गया है, कोरस का नाम, मतलब कोरस ही कोरस बताया गया है यहाँ पे, कि क्योंकि जितनी भी मेन स्पीचेस होती हैं वो कौन बोलता है, रॉस बोलता है। रॉस की यहाँ पे मेन स्पीचेस को यहाँ पे बताया गया, दैट्स वाई रॉस इज नोन एज द कोरस, और ही इज ऑल्सो नोन एज द मैकेनिकल कैरेक्टर। ओके, क्योंकि वो ही सारी जनरल इंफॉर्मेशन जो है वो देता है इस प्ले में, इजंट इट, जितनी भी जनरल इंफॉर्मेशंस होती हैं। ओके, और किसी भी चीज़ पे अगर कमेंट करना है, ओके, तो वो सब कौन करेगा, इसमें रॉस करेगा। दैट्स वाई रॉस इज अ कोरस कैरेक्टर। ये चीज़ आप याद रखेंगे, इजंट इट। नाउ लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट द सीन एंड लेट्स रीड द स्पीच ऑफ ओल्ड मैन। ओल्ड मैन क्या कहना चाह रहे हैं, तो ध्यान से समझेंगे इस स्पीच को। 310 I can remember well, within the volume of which time I have seen hours dreadful and things strange, but this sore night has fulfilled former knowings। मतलब कहना चाह रहे हैं कि 310, सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 310। 310, देखो 310 ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ओके, 3 स्कोर, जो 1 स्कोर होता है, यहाँ पे समझेंगे सबसे पहले, जो 1 स्कोर होता है ये एक वैल्यू है। ओके, ये एक वैल्यू है। तो 1 स्कोर जो होता है वो 20 के इक्विवेलेंट होता है। कितना, 20 के इक्विवेलेंट। ओके, ध्यान से समझेंगे, 1 स्कोर 20 के इक्विवेलेंट होता है, तो 3 स्कोर किसके इक्विवेलेंट होंगे। ओके, 1 स्कोर 20 के इक्विवेलेंट होगा, तो 3 स्कोर किसके इक्विवेलेंट होंगे, 20 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 3 इंटू 20 कितना होगा, 60। ओके, 3 इंटू 20 मतलब 60। अब 3 स्कोर तो आपको समझ आ गया कि 60 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है एंड 10 का मतलब क्या हुआ, इसमें 10 ऐड कर दो, ऐड 10, जो भी आंसर आएगा उतने ही ईयर्स होंगे, मतलब 60 प्लस 10 कितना हुआ, 70। अंडरस्टैंड, फिर से बता देंगे, 3 स्कोर एंड 10। 1 स्कोर जो होता है वो 20 के इक्विवेलेंट होता है। अब यहाँ पे 3 स्कोर कहा गया, इसका मतलब 20 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो कितना होगा, 60 होगा। एंड 10 मतलब 10 को ऐड करना है। ओके, 60 प्लस 10 कितना हुआ, 70 हुआ। तो ये कहना चाह रहे हैं कि 70 ईयर्स में जो ओल्ड मैन है वो क्या कहते हैं कि मुझे इतने साल हो गए, मुझे 70 साल हो गए जीते हुए। ओके, मुझे 70 ईयर्स हो गए जीते हुए, मैंने कभी भी इतनी भयानक रात नहीं देखी जितनी कि कल रात थी। मतलब लास्ट नाइट वॉज वेरी हॉरेबल।
जो लास्ट नाइट थी वो बहुत हॉरिबल थी। मैंने अपने 70 ईयर्स में, मुझे अभी तक याद है, जितना मुझे याद है, मैंने 70 ईयर्स में ऐसी रात कभी नहीं देखी। ओके, दैट नाइट वॉज वेरी हॉरिबल। ओके, जो मैंने नाइट देखी थी, दैट नाइट वॉज वेरी हॉरिबल, hours dreadful and things strange, but this sore night had fulfilled former knowings. ओके, अब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हॉरिबल, मतलब यहाँ पे ये कहता है, सॉरी, कि मुझे 70 ईयर्स हो गए। मैं दोबारा समझाता हूँ यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। सॉरी, मुझे 70 ईयर्स हो गए रहते हुए, मैंने बहुत ज़्यादा हॉरिबल नाइट्स देखी, बहुत ज़्यादा खतरनाक रात देखी। ओके, पर जो मैंने कल रात देखा, जो नाइट मैंने कल रात देखी, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि पहले की जो जितनी भी डरावनी रातें थी, मेरे 70 सालों से पहले की जितनी भी डरावनी रातें थी, वो तो सिर्फ एक जोक थी। दैट वॉज जस्ट अ फॉर्मल नोइंग। फॉर्मल नोइंग का मतलब होता है जोक, एक मजाक रह गई है। मतलब कहना चाह रहा है कि कल की नाइट इतनी डरावनी थी कि मेरी बाकी की जो 70 ईयर्स की नाइट्स थी वो सिर्फ एक जोक है। ओके, वो सिर्फ एक मजाक बन के रह गया है। समझ आया क्या कहना चाह रहा है? मैं दोबारा समझाता हूँ कि 70 ईयर्स में मुझे अभी तक याद है, जितनी भी मैंने रातें देखी हैं, जितनी भी मैंने डरावनी रातें देखी हैं, बेसिकली जितनी भी मैंने स्पूकी नाइट्स देखी हैं, ओके, उससे ज़्यादा स्पूकी नाइट कल थी। मतलब कल की नाइट ऐसी थी कि कल की नाइट इतनी डरावनी थी कि ऐसा लगता है कि पहले की जितनी भी डरावनी रातें थी वो सिर्फ एक जोक है मेरे लिए, वो सिर्फ एक मजाक है मेरे लिए। ओके, तो यू ऑल नो द शेक्सपियर की बातें हमेशा एग्जेजरेटेड रहती हैं, हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रेचफुल रहती हैं, बहुत बना चला के बहुत बोलते हैं, है ना। तो यही बात ये ओल्ड मैन कह रहा है। ओल्ड मैन यहाँ पे कौन है? अब नोबल मैन ऑफ स्कॉटलैंड, इजंट इट? देन Ross says, good father, thou seest the heaven as troubled with man's act, threaten his bloody stage by the cock this day, and yet dark night strangles the trembling lamp. It is this night's predominance or the day's shame? That darkness does the face of earth entomb when living light should kiss it. मतलब कहना चाह रहा है that गुड फादर, यस गुड फादर। फादर यहाँ पे रिस्पेक्ट दी गई है। ओके, फादर का मतलब ये नहीं है कि वो ओल्ड मैन रॉस का पिता है, नो। फादर का मतलब यहाँ पे रिस्पेक्ट दे रहा है रॉस। ओके, तो जस्ट इट इज़ द रिस्पेक्ट। ओके, तो कह रहा है हाँ आपने सही कहा ओल्ड मैन, यस ओल्ड मैन, दाउ सीस्ट द हेवेंस एज ट्रबल्ड विद मैन्स एक्ट। मतलब आप देख सकते हैं कि जो स्काई है, जो नेचर है, वो मैन डीड से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, बहुत बॉदर हो चुका है, बहुत डिस्टर्ब्ड है। जो मतलब मैंस, जो ह्यूमन बींग्स मतलब करते हैं, जो ह्यूमन बींग्स मतलब एक्ट करते हैं, उससे जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ओके, थ्रेटन हिज ब्लडी स्टेज, मतलब कहना चाह रहा है कि जो मेंस हैं उनके डीड से नेचर बहुत ज़्यादा परेशान है। बाय द क्लॉक दिस डे एंड येट डार्क नाइट स्ट्रेंगल्स द ट्रैवलिंग लैम्प। मतलब क्लॉक को देखता हूँ, अगर मैं क्लॉक को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये डे टाइम है। मतलब क्लॉक को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है दैट इट इज़ द डे टाइम, बट फिर भी यहाँ पे डार्क नाइट जो है वो घेरा किए हुए है। स्ट्रैंगल का मतलब होता है टोटल्ड, मतलब घेर लिया है। मतलब अगर मैं क्लॉक को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि सुबह का वक्त है, दिन है, पर जब मैं ऊपर देखता हूँ आसमान में तो अभी भी जो काले बादल हैं वो आसमान को घेरे हुए हैं, अभी भी वो रात किए हुए हैं। ओके, नाउ इज दिस नाइट प्रिडोमिनेंस और द डे शेम। मतलब कहना चाह रहा है क्या ये नाइट बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है? प्रिडोमिनेंस का मतलब है पावरफुल। क्या ये नाइट बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है और जो डे है, या फिर ये डे जो है वो बहुत ज़्यादा शेमफुल, मतलब बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं वीक, फ्रेल बन चुका है, फ्रेल या वीक। ओके,
मतलब कहना चाह रहा है, ऐसा लग रहा है या तो जो नाइट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है या डे बहुत वीक हो चुका है। ओके, जो डे है वो बहुत ज़्यादा शेमफुल हो चुका है। दैट डार्कनेस डज द फेस ऑफ अर्थ इन टॉम्ब when living light should kiss it। मतलब कहना चाह रहा है या तो नाइट जो है वो बहुत ज़्यादा शेमफुल हो चुकी है या नाइट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है या डे जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं शेमफुल हो चुका है। इसीलिए जो डे है, ओके, इसीलिए जो डे है वो अपना मुंह छुपाए हुए है। दैट्स वाई जो नाइट है, ओके, इसलिए द डार्कनेस डज द फेस ऑफ अर्थ इन टॉम्ब व्हेन लिविंग लाइट शुड किस इट। मतलब इस टाइम पे तो सुबह होनी चाहिए थी, ओके, फिर भी इस टाइम पे रात है। ऐसा लग रहा है जैसे कि जो नाइट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है, जिसने डे को भी क्या कर दिया है, सप्रेस कर दिया है। तभी तो अभी तक दिन नहीं हुआ है, तभी तो अभी तक रात है। ओके, तो ये कहना चाह रहा है रॉस कि ऐसा लग रहा है जैसे कि जो नाइट टाइम है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है और वो डे को निकलने नहीं दे रही है, डे को उसने सप्रेस कर दिया है, डिप्रेस कर दिया है। ओके, इस टाइम पे तो लाइट को आ जाना चाहिए, लाइट शुड किस इट, मतलब इस टाइम पे तो लाइट को आ जाना चाहिए, पर अभी तक लाइट नहीं आई, अभी तक डार्क है। इसका मतलब तो ये है कि डार्क जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है कि वो लाइट को भी नहीं निकलने दे रहा है। ओके, नाउ old man says that this is unnatural, even like the deed that's done on Tuesday last. A falcon towering in her pride of place was by a mousing owl hawked at and killed। मतलब कहना चाह रहे हैं कि दिस इज अननेचुरल, मतलब ये बहुत स्ट्रेंज है। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज इवन लाइक द डीड दैट्स डन ऑन ट्यूसडे लास्ट। मतलब ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। ओके, इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, बिल्कुल उसकी तरह जैसे कि लास्ट ट्यूसडे पे जो मर्डर हुआ था। लास्ट ट्यूसडे पे किसका मर्डर हुआ था? लास्ट ट्यूसडे पे मर्डर हुआ था किंग का नहीं, लास्ट ट्यूसडे पे मर्डर हुआ था एक आप कह सकते हैं माउस का। ओके, सॉरी नॉट माउस, सॉरी एक ईगल का, एक हॉक का। हॉक कहते हैं बाज को। ओके, तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं दिस unnatural even like the deed that's done on Tuesday last। a falcon का मतलब है बाज। बाज एक बर्ड होती है, चिड़िया, जिसे हम क्या कहते हैं, हॉक। Okay, a falcon towering in her pride of place was by a mousing owl hawked at and killed। मतलब कहना चाह रहे हैं कि दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, ये बहुत स्ट्रेंज है, बिल्कुल लास्ट डे की तरह। जैसे ट्यूसडे को क्या हुआ था, ट्यूसडे को एक हॉक जो है, एक हॉक मतलब एक ईगल, एक बाज उड़ रहा था इन हर प्राइड, अपने ही प्राइड में। प्राइड ऑफ प्लेस मतलब अपने ही जगह में। प्राइड ऑफ प्लेस का मतलब है, देखो ये जो बाज वगैरह होते हैं आसमान में कितना खुल के उड़ते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि जितनी भी जगह ये है ये हमारी अधिकार में है, ये हमारी जगह है जिसमें हम उड़ रहे हैं। तो उन्हें एक अलग सा एरोगेंट होता है, एक अलग सा प्राइड होता है उन्हें। ओके, तो उसी प्राइडफुल प्लेस में, मतलब अपनी प्लेस में वो उड़ रहा था बाज। ओके, बहुत प्राइड में। ओके, वो मारा गया बाय अ कॉमन मैन। किसके द्वारा? एक कॉमन मैन के द्वारा। जब वो जो बाज है वो किसे मारने जा रहा था? एक माउस को मारने जा रहा था। वॉज बाय अ माउसिंग आउल हॉक्ड एट एंड किल्ड। मतलब जब वो एक माउस को किल करने जा रहा था, माउस को बेसिकली मारने जा रहा था, ओके, उसके ऊपर हमला बोलने जा रहा था, तभी ही एक कॉमन मैन ने उस हॉक को, उस बाज को मार दिया। ओके, तो ये कह रहे हैं ओल्ड मैन। ओके, दोबारा समझेंगे कि ये जो नाइट है ये बहुत स्ट्रेंज थी। ओके, ये नाइट बिल्कुल इतनी स्ट्रेंज थी, इतना मतलब इतनी अजीब थी, जैसे कि लास्ट ट्यूसडे पे एक जो बाज है वो उड़ रहा था। ओके, और अपने ही प्राइड में, ओके, अपने प्राइड में उसने एक माउस को पकड़ने की कोशिश की, एक चूहे को पकड़ने की कोशिश की, और उसी में एक कॉमन मैन ने, एक नॉर्मल मैन ने उस ईगल को मार दिया। ओके,
Then Ross says, Ross says, and Duncan's horses, a thing more strange and certain, beauteous and swift, the minors of their race turned wild in nature, broke their stalls, flung out, contending against obedience as they would make war with mankind. और इतना ही नहीं, मतलब आप तो यही कह रहे हैं, ये नहीं, साथ में ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हुआ था, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज मतलब इंसिडेंट अकर हुआ था कि जो डंकन्स के हॉर्सेस हैं, जो डंकन के घोड़े हैं जिस पे डंकन जाया करते थे वॉर के लिए, ओके, डंकन के जो हॉर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल माने जाते हैं, ओके, दे आर सेड टू बी अ ब्यूटियस का मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल माने जाते हैं, एंड स्विफ्ट का मतलब है बहुत तेज़ दौड़ने वाले, ओके, बहुत ब्यूटीफुल एज वेल एज बहुत स्विफ्ट माने जाते हैं, मतलब बहुत तेज़ दौड़ने वाले माने जाते हैं, ओके। द माइनियंस ऑफ देयर रेसेस कंटेंडिंग अगेंस्ट ओबीडियंस, वो भी बिल्कुल मतलब वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो गए, वो भी बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए, वो भी बहुत ज़्यादा वाइल्ड बन गए, ओके। मतलब डंकन के वो हॉर्सेस जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा काम माने जाते हैं, बहुत तेज माने जाते हैं, वो भी बहुत वाइल्ड बन गए, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा जंगली बन गए, ओके। और उन्होंने अपने स्टॉल कहा जाता है जो जहाँ पे हॉर्सेस को रखा जाता है, अपने स्टॉल को तोड़ दिया। वो इतने वाइल्ड बन गए कि उन्होंने अपने स्टॉल को तोड़ दिया, और वो लोग एंड it broke their stalls, flung out, contending against obedience as they would make war with mankind. और वो बिल्कुल मतलब वो लोग किसी के काबू में नहीं आ रहे थे, किसी के वश में नहीं आ रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये हॉर्सेस जो हैं वो मैनकाइंड से, वो ह्यूमन बींग्स से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ह्यूमन बींग्स को ही मार डालेंगे, इतने ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप स्टॉल्स में जाएंगे हॉर्सेस के, तो अगर कोई भी हॉर्सेस बहुत ज़्यादा फ्यूरियस होगा, हॉर्स कोई फ्यूरियस होगा, वैसे तो सारे एनिमल्स ही बहुत ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं, पर आप जब हॉर्स को देखेंगे गुस्से में तो वो ऊपर चढ़ जाता है ना, वो ऊपर चढ़ के क्या करता है, अटैक करता है, ओके। तो कहा जा रहा है कि वो हॉर्सेस भी बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो गए। जनरली हॉर्सेस को क्या सिखाया जाता है, मतलब किंग्स के जो हॉर्सेस होते हैं उन्हें सिखाया जाता है ओबे करना उनके मास्टर्स को, है ना। तभी तो अगर उनका मास्टर कहीं भी टर्न होने के लिए कहते हैं तो वो टर्न हो भी जाते हैं, इज़न्ट इट। जनरली हॉर्सेस को क्या बताया जाता है, ओबे करने के लिए अपने मास्टर को। पर उस दिन तो क्या हुआ, जो डंकन के हॉर्सेस हैं वो ही वाइल्ड हो गए, क्योंकि वो जंगली बन गए, और अपने स्टॉल को जहाँ पे वो बांधे जाते हैं, अपने घर को उन्होंने तोड़ दिया, तहस नहस कर दी सब जगह, ओके। एंड द माइनियंस ऑफ देयर रेस का मतलब है सबसे अच्छे, आप कह सकते हैं ब्रीड के, ओके, सबसे अच्छी ब्रीड मतलब सबसे अच्छे कुछ बहुत ज़्यादा चुनिंदा घोड़ों को डंकन के लिए मंगाया गया था, ओके। पर कुछ देर बाद वो जंगली बन गए, ओके, वो वाइल्ड बन गए, और उन्होंने अपने घर को ही तोड़ दिया, अपने स्टॉल को ही तोड़ दिया, और वो rather than obeying their master का मतलब rather than obeying their master, वो क्या करने लगे, मैनकाइंड से ही वॉर करने लगे। मैनकाइंड मतलब ह्यूमन बीइंग से ही वॉर करने लगे, ओके। तो ये रॉस कह रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मतलब स्पीचेस हैं, इसलिए इनमें देर लग रही है थोड़ी बताने में, ओके। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ओके। मैं दोबारा बता देता हूँ अगर आप चाहते हैं तो, ओके। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ना। रॉस की स्पीच दोबारा बता देते हैं, ओके। नहीं, रॉस की तो मैंने बता दी आपको। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स सी ओल्ड मैन क्या कहता है। दिस सेड दे ईट ईच अदर, मतलब कहना चाह रहा है कि ऐसा लग रहा था हॉर्स इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि ऐसा लग रहा था वो एक दूसरे को खा डालेंगे, ओके, मतलब एक दूसरे को खा लेंगे, इतने ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे हॉर्स, ओके, कि वो एक दूसरे को ही खा लेंगे,
Then Ross says that they did so to the amazement of mine eyes that looked upon it. Here comes the good Macduff. Now, here's he's saying, and रॉस कहता है कि हाँ, और उन्होंने ऐसा कर भी लिया। वो लोग एक दूसरे को खाने भी लगे, मतलब एक दूसरे पे हमले भी करने लगे, एक दूसरे से लड़ने भी लगे। और इसे देख के मैं तो बहुत ज़्यादा लाइक अमेज हो गया, मैं तो चौंक गया। ओके, अमेजमेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चौंक जाना, या आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा स्टंट हो जाना, इज़न्ट इट। अमेज मतलब होता है मैं तो चौंक गया। मतलब रॉस कहता है कि ऐसा करते देखकर, ओके, उन्हें एक दूसरे से लड़ते देखकर मैं तो चौंक ही गया। ओके, दे लुक्ड अपॉन इट, दैट लुक्ड अपॉन इट, हियर कम्स द गुड मैकडफ, एंड हियर कम द मैकडफ। देखो, मैकडफ इज कमिंग। देन एंटर मैकडफ। अब मैकडफ आता है, एंड ही सेड दैट हाउ गोज द वर्ल्ड सर नाउ, मीन्स कैसे चल रहा है जीवन। हाउ गोज द थिंग्स, हाउ आर थिंग्स गोइंग ऑन। ओके, कैसे चल रहा है जीवन। कौन कहता है? मैकडफ। ओके, नो सॉरी, रॉस सेज दिस, हाउ गोज द वर्ल्ड सर नाउ, कैसा चल रहा है जीवन, मतलब सब चीज़ें सही चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, कैसी चल रही हैं सारी चीज़ें। देन मैकडफ सेज वाई सी यू नॉट, तब थोड़ा सा गुस्से में बोलता है मैकडफ, क्यों तुम्हें दिखाई नहीं देता कैसी चल रही हैं। ओके, क्या तुम नहीं देख सकते कैसी चल रही चीज़ें? क्यों गुस्से में बोल रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली रॉस को सब कुछ पता है कि किंग डंकन की मौत हो चुकी है, तो कैसा चल रहा होगा, सारा सब कुछ इधर उधर चल रहा होगा, क्योंकि हमारे किंग जो है, हमारे मतलब जो स्कॉटलैंड का किंग है वो मर चुका है, तो पूरे स्टेट में तबाही मच गई होगी। तो इसलिए मैकडफ जो है वो थोड़ा गुस्से में बोलता है, क्यों तुम्हें नहीं पता कैसी चल रही हैं चीज़ें। ओके, तुम्हें नहीं पता कैसी चल रही हैं चीज़ें। देन रॉस सेज दैट it is known who did this more than bloody deed. Now Ross says कि क्या तुम्हें पता है कि ये ब्लडी डीड किसने किया? ओके, रॉस कहता है कि क्या तुम जानते हो कि ये ब्लडी डीड, ये मर्डर किसने किया? देन मैकडफ सेज those that Macbeth has slain. तो मैकडफ कहता है कि हाँ मुझे पता है, अरे उन्होंने ही तो किया था जिसे मैकबेथ ने मार दिया। ओके, जिन्हें मैकबेथ ने मार दिया उन्होंने ही तो मारा था किंग डंकन को। किसने? द चैम्बरलेन्स ऑफ डंकन्स रूम, मतलब जो गार्ड्स हैं डंकन के। ओके, उन्हें ही तो मारा था मैकबेथ ने, इजंट इट। तो ये कह रहा है कि जिन्हें मैकबेथ ने मार दिया उन्होंने ही तो मारा था किंग डंकन को। ओके, तो जो मैकडफ है उसे बहुत भरोसा है मैकबेथ पे, पर जो उसके बेटे हैं, ओके, कहीं ना कहीं उन्हें शक हो जाता है। ओके, और बैंक्यू को शक हो जाता है कि ये शायद मैकबेथ ने किया है। पर मैकडफ क्या कहता है? मैकडफ कहता है कि दोज दैट मैकबेथ हैज स्लेन, मतलब उन्हीं लोगों ने किंग डंकन को मारा था जिन्हें मैकबेथ ने मारा है। किन्हें मारा था मैकबेथ ने? मैकबेथ ने उन गार्ड्स को मारा था, इजंट इट। तो उन्हीं गार्ड्स ने लाइक किंग डंकन को मारा है, ये कहता है मैकडफ। देन रॉस सेज अलास द डे व्हाट गुड कुड दे प्रिटेंड। तभी रॉस कहता है दैट अलास द डे व्हाट गुड कुड दे प्रिटेंड। ओ माई गॉड, व्हाट अ सैड डे इट इज। ओके, कितना बुरा दिन है ये। ओके, कितना बुरा किया उन लोगों ने, उन चैम्बरलेन्स ने, उन गार्ड्स ने डंकन को मार के। और उन्हें क्या अच्छा मिला ये करके? उन्हें ऐसा करके क्या मिला? ओके, व्हाट गुड कुड दे प्रिटेंड, मतलब ऐसा करके उन्हें क्या मिला? ओके, किंग को मार के उन दोनों गार्ड्स को क्या मिला? देन मैकडफ सेज दे वर सबोन्ड। अब मैकडफ कहता है दे वर सबोन्ड। Malcolm and Donalbain, the king's two sons, are stolen away and freed, which puts upon them suspicion of the deed. अब मैकडफ कहता है कि उन्हें क्या मिला? उन्हें लाइक दे हायर टू डू दिस मर्डर, लाइक
मैकडफ कहता है दे वर सबॉन्ड। रॉस जब कहता है कि उन्हें ऐसा करके क्या मिला, तो मैकडफ कहता है कि उन्हें किसी ने हायर किया था। ओके, दे वर सबॉन्ड का मतलब है उन गार्ड्स को किसी ने हायर किया था लाइक किंग डंकन को मरवाने के लिए। मतलब ये किसी और की साजिश है, ये चैम्बरलेन्स ने नहीं किया है, मतलब चैम्बरलेन्स ने अपने उस पर नहीं किया है, किसी ने करवाया है। ये जो मर्डर है ये किसी ने करवाया है। ओके, किसी के कहने पे उन दोनों गार्ड्स ने किंग डंकन को मारा था। नाउ ही सेड मैलकॉम एंड डोनाल्ड द किंग्स 2 sons आर स्टोलन अवे एंड फ्लीड। मैलकॉम और डोनाल्ड बेन दोनों भाग गए। ओके, डोनाल्ड बेन और मैलकॉम जो हैं वो दोनों तो भाग गए। ओके, विच पुट्स अपॉन देम सस्पिशियस ऑफ द, जो कि क्योंकि वो दोनों भाग गए तो शक जो है सबसे ज़्यादा किन पे जाता है, उन्हीं दोनों पे जाता है। ओके, क्योंकि वो दोनों भाग गए हैं, कौन, मैलकॉम एंड डोनाल्ड बेन, तो सबसे ज़्यादा शक किस पे जा रहा है, शक उन्हीं पे जा रहे हैं। ओके, डंकन के बेटों पर ही जा रहा है कि शायद हो सकता है कि उन्होंने ही किंग डंकन को मारा हो। ओके, मैलकॉम एंड डोनाल्ड बेन ने ही किंग डंकन को मारा हो, क्योंकि वो ही दोनों भाग गए हैं। ओके, वो ही दोनों भाग गए हैं, तो हो सकता है उन्हीं दोनों ने किंग डंकन को मारा हो। देन रॉस सेज दैट अगेंस्ट नेचर स्टिल thriftless ambition that will raven up। मतलब कहना चाह रहे हैं कि ऐसा करके उन्होंने नेचर के अगेंस्ट काम किया है। ओके, ऐसा करके उन्होंने नेचर के अगेंस्ट काम किया है। क्यों नेचर के अगेंस्ट काम किया है? क्योंकि नेचर ऐसे किंग को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। ओके, पर ऐसा करके उन्होंने नेचर के अगेंस्ट काम किया है, तभी तो नेचर देखो कितना ज़्यादा डार्क है। ओके, नेचर कितना ज़्यादा डार्क है। तो रॉस कहता है कि उन्होंने ऐसा करके नेचर के अगेंस्ट काम किया है। थ्रिफ्टलेस एम्बिशन दैट विल रेवन अप, मतलब कहना चाह रहे हैं कि कैसा वेस्टफुल एम्बिशन है। ओके, जिसने अपने ही पिता को, अपने ही फादर को मार दिया। ओके, जिन्होंने उन्हें लाइफ दी उन्हें ही मार दिया। रॉस कहता है दैट अगेंस्ट नेचर स्टिल थ्रिफ्टलेस एम्बिशन व्हाट विल रेवन अप थाइन ओन लाइफ्स मीन देन दिस मोस्ट लाइक द sovereignty will fall upon Macbeth। मतलब कहता है रॉस दैट कितना ज़्यादा, मतलब ऐसा करके उन्होंने नेचर के अगेंस्ट काम किया है। ओके, ऐसा करके उन्होंने नेचर के अगेंस्ट काम किया है, भागकर उन्होंने नेचर के अगेंस्ट काम किया है। इसका मतलब ये है दैट क्योंकि डंकन की मौत हो चुकी है, देखो। ओके, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत, क्योंकि डंकन की मृत्यु हो चुकी है, तो जितने भी जो सेरेमनीज़ होंगी, जो फ्यूनरल वगैरह होता है वहाँ पे, तो वो उन सारी सेरेमनीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसका रहना है? उनके बेटों का, इज़न्ट इट। अब जब वो ही भाग गए हैं, ओके, किंग डंकन के बेटे ही भाग गए हैं, तो ऐसा करके उन्होंने अगेंस्ट द नेचर काम किया है। क्योंकि नेचर का रूल क्या है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो सबसे मतलब जो भी सारे काम होते हैं वो कौन करते हैं? उनके बेटे करते हैं। ओके, उनके सन जो होते हैं वो करते हैं। पर ऐसा करके मैलकॉम और डोनाल्ड बेन ने भाग करके नेचर के अगेंस्ट काम किया है। ओके, नाउ thriftless ambition that will raven up thine own life means, मतलब ऐसे भी एम्बिशन से क्या फ़ायदा? रॉस कहता है ऐसे भी एम्बिशन से क्या फ़ायदा जो अपने ही पिता को, जिन्होंने तुम्हें लाइफ दी है, उन्हीं को तुम मार डालो। ओके, that this most like the sovereignty will fall upon Macbeth and then it is seen that the sovereignty का मतलब होता है द किंगशिप। ओके, मतलब क्योंकि मैलकॉम एंड डोनाल्ड बेन वो तो भाग गए दोनों। ओके, तो ऐसा लगता है कि किंग का टाइटल तो अब किसे मिलेगा? मैकबेथ को ही मिलेगा। ओके, क्योंकि डोनाल्ड बेन और मैलकॉम तो भाग गए हैं, तो अब तो किंग किसे बनना चाहिए? फ्यूचर किंग बनना चाहिए मैकबेथ को। ओके, क्योंकि वो ही इसके लिए सबसे परफेक्ट पर्सनैलिटी रहेगा। ओके, क्योंकि उसने इतना कुछ किया है किंग डंकन के लिए। ओके, तो इसलिए उसे किंग बनना
चाहिए, isn't it? Then Macduff says he's already named and gone to Scone to be invested. Now here Macduff says that then Macduff says he is already named and gone to Scone to be invested. Now उसे मतलब अब कहना चाह रहा है, मैकडफ कहता है कि उसे ऑलरेडी मतलब किंग का टाइटल मिल चुका है, ओके, मैकबेथ को ऑलरेडी किंग का टाइटल मिल चुका है और इसलिए वो स्कोन गया है अपने इस टाइटल को अचीव करने, अपने इस टाइटल को मतलब क्राउन को पहनने, जो क्राउन की सेरेमनी है उसको करने वो कहाँ गया है, स्कोन गया है। स्कोन बेसिकली एक वो प्लेस है जहाँ पे जो स्कॉटिश किंग है, ओके, जो स्कॉटिश किंग है वो सारे क्राउंडेड करते आए हैं, मतलब अपने जो राजा बनते हैं ना, तो जो क्राउन पहनाया जाता है वो सब कहाँ होता है, स्कोन में होता है। तो मैकबेथ भी स्कोन गया है जिससे कि वो अपने आप को किंग अनाउंस कर पाए, ओके, क्योंकि स्कोन ही ऐसी प्लेस है जहाँ पे जो स्कॉटलैंड के किंग्स हैं उन्हें क्राउन पहनाया जाता है किंग डिक्लेयर करने के लिए, वहीं से वो लोग किंग डिक्लेयर होकर आते हैं। तो सेम मैकबेथ भी वहीं गया है, ओके, मैकबेथ भी स्कोन गया है जिससे कि वो किंग बन सके। देखो मैकबेथ को कितनी जल्दी है किंग बनने की, तभी तो वो बिना किसी को बताए चुपचाप चला गया स्कोन खुद को किंग टाइटल देने, ओके। देन रॉस सेज वेयर इज डंकन्स बॉडी, और वेयर इज डंकन्स बॉडी, डंकन की बॉडी किधर है, ओके, वेयर इज हिज डेड बॉडी। देन मैकडफ सेज कैरी टू Colmkill and the sacred storehouse of his predecessors and guardians of their bones। मतलब कहना चाह रहे हैं कि डंकन की बॉडी तो कहाँ गई है, कॉल्मकिल गई है। कॉल्मकिल वो प्लेस है जहाँ पे जो स्कॉटिश किंग हैं उनकी डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है। मतलब डंकन के जितने भी एंसेस्टर्स रहे हैं, डंकन के फादर के फादर दैन उनके फादर, जितने भी एंसेस्टर्स रहे हैं उन सब की डेड बॉडी जो है वो कहाँ दफनाई गई है, वो कॉर्नकिल में ही दफनाई गई है। कॉर्नकिल वो जगह है जहाँ पे स्कॉटिश किंग्स जो होते हैं, जितने भी स्कॉटिश किंग हैं, जितने भी स्कॉटलैंड के जो लाइक किंग्स हुए हैं पास्ट में, ओके, उनकी डेड बॉडीज़ को दफनाया गया है। तो सेम डंकन की भी डेड बॉडी कहाँ पे दफनाई जाएगी, कॉर्नकिल में ही दफनाई जाएगी, ओके। नाउ द सेक्रेट स्टोर हाउस, कॉर्नकिल क्या है, इट इज़ द सेक्रेट स्टोर हाउस, इट इज़ द वेरी प्योर स्टोर हाउस जहाँ पे उसके प्रेडिक्सर्स मतलब उसके एंसेस्टर्स जो हैं उनकी डेड बॉडीज़ को दफनाया गया है, उनकी बोन्स अभी भी वहाँ पर हैं। सेम डंकन को भी वहीं ले जाया गया है फॉर द फ्यूनरल। देन रॉस सेज विल यू टू स्कोन, नाउ रॉस सेज विल यू टू स्कोन, मतलब क्या तुम स्कोन जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्कोन, ओके। देन मैकडफ सेज नो कजिन आई टू 5, नहीं मैं 5 जा रहा हूँ, 5 एक प्लेस है, ओके, तो मैं 5 जा रहा हूँ। 5 क्या है, 5 पे मैकडफ जो है उसका घर है, ओके। 5 में क्या है, मैकडफ का एंसेस्ट्रल घर है, मतलब उनके जो दादा परदादा हैं उनका घर है 5 में। तो मैकडफ कहता है कि नहीं मैं स्कोन नहीं, मैं 5 जा रहा हूँ। देन रॉस सेज वेल आई विल थितर, ओके, पर मैं स्कोन जा रहा हूँ। वेल आई विल थितर मीन्स मैं स्कोन जा रहा हूँ, ओके। रॉस कहता है मैं स्कोन जा रहा हूँ। स्कोन एक एशियंट हिस्ट्री है, सिटी है जहाँ पे किंग्स को जो है वो क्राउन किया गया है, ओके, किंग को मतलब डिक्लेयर किया है लोगों को किंग, ओके। तो जो मैकडफ है, सॉरी रॉस है, वो कहता है मैं तो स्कोन जा रहा हूँ, ओके, आई एम गोइंग टू स्कोन। देन मैकडफ सेज वेल मे यू सी थिंग्स वेल डन देयर अजीव lest our old robes sit easier than our new। Now Macduff says कि well may you see things well done there, मतलब ओके, पर तुम वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं उसका ध्यान रखना, वहाँ पे चीज़ें सही से हों, इस चीज़ का ध्यान रखना। जितनी भी सेरेमनीज होनी है मैकबेथ के किंग बनने में उस सब का ध्यान रखना तुम, ठीक है।
adieu इज अ वर्ड, ओके, उसका मतलब है गुड बाय, ओके। सो adieu का मतलब है यहाँ पे बाय, गुड बाय, ओके। नाउ मैकडफ ऑल्सो सेज लेस्ट आर ओल्ड रॉब सिट ईजियर देन आर न्यू, मतलब कहता है कि मतलब काश जो हमारा ये न्यू किंग है, मतलब ये जो मैकबेथ है, वो बिल्कुल ओल्ड किंग की तरह ही हो, मतलब इतना ही इंटेलिजेंट, इतना ही लाइक काम हो जितने कि हमारे ओल्ड किंग डंकन थे, ओके। मतलब कहना चाह रहा है कि जो हमारे ओल्ड किंग के कैरेक्टर्स हैं वो सारे न्यू किंग में फिट हो जाएं, ओके। वो उसी निष्ठा से, उसी ऑनेस्टी से रूल करें स्कॉटलैंड पे जिस ऑनेस्टी से हमारे प्रीवियस किंग दैट इज डंकन कर रहे थे, ओके। देन फ्रॉस्ट सेज फेयरवेल फादर, फेयरवेल फादर, फादर अगेन दिस इज अ स्लैंग वर्ड, मीन्स फेयरवेल फ्रेंड, फेयरवेल ओल्ड मैन, फेयरवेल मतलब गुड बाय ओल्ड मैन। देन ओल्ड मैन सेज God's benison go with you and with those that would make good of bad and friends of foes. Now, old man blessings देता है किसे? रॉस को, that God bless you, God तुम्हें bless करे बेटा, ओके। और तुम ओल्ड मैन कहता है कि गॉड तुम्हें ब्लेस करें और उन लोगों को भी ब्लेस करें जो अच्छी चीज़ों, जो बुरी चीज़ों में से अच्छी चीज़ों को निकाल देते हैं और जो एनिमीज़ हैं उनमें से फ्रेंड्स को, मतलब उन्हें फ्रेंड्स बना देते हैं। मतलब कहना चाह रहे हैं कि मतलब भगवान तुम्हें ब्लेस करें और साथ ही उन लोगों को ब्लेस करें जो एनिमीज़ को अपना फ्रेंड बना देते हैं और बुरी चीज़ों में से गुड चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें हैं वो निकाल देते हैं, ओके। बुरी चीज़ों को अच्छी चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। दैट वुड मेक गुड ऑफ बैड, मतलब बुरी चीज़ों में से अच्छी चीज़ों को कन्वर्ट, बुरी चीज़ में से अच्छी चीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं। एंड फ्रेंड्स ऑफ फोर्स, फोर्स का मतलब होता है एनिमी, मीन्स एनिमीज़ को अपना फ्रेंड बना देते हैं, ओके। तो ओल्ड फ्रेंड जो है, ओल्ड मैन जो है वो कहता है कि भगवान तुम्हें मतलब भगवान की कृपा हमेशा तुम पर रहे, ओके। और तुम तुम उनकी तरह ही जाओ, मतलब तुम उन्हीं की तरह बनो जो अच्छी, जो बुरी चीज़ों में से अच्छी चीज़ों को निकाल देते हैं और जो मतलब एनिमीज़ हैं उन्हें अपना फ्रेंड बना देते हैं, ओके। और यहीं पे जो सीन है एक्ट 2 सीन 4 वो भी ख़त्म हो जाता है, ओके। इट एक्सुएंट। सो आई होप द सीन इज़ क्लियर टू यू कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीन था, भले ही छोटा सा सीन था पर इसे समझाने में काफ़ी वक्त लगा क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके यहाँ पे मिलते हैं, इज़न्ट इट? सो दैट्स इट, गुड बाय। एंड इफ़ यू लव दिस वीडियो दैन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, सब्सक्राइब माय चैनल। और इसी के साथ हमारा जो इसी के साथ हमारा क्लास 11th का सिलेबस फॉर मैकबेथ वो भी कंप्लीट हो जाता है। सो हुर्रे, आपका क्लास 11th का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ओके। अब इसका एक समरी लेक्चर बचता है, साथ ही में इसके कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट अगर होंगे, अगर मुझे बताने होंगे तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा। वैसे तो मैंने सीन में ही सब आपको बता दिया ऑलरेडी, ओके। पर अगर आपको चाहिए सारे इंपॉर्टेंट स्पीचेस अगर एक ही बार में आपको बताऊँ तो आप बता सकते हैं, यू कुड कमेंट मी डाउन, ओके। बस इसका समरी लेक्चर बचता है, उसके बाद हम आएंगे अपने पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी बुक पर। सो दैट्स इट, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। नाउ लेट्स पॉज द मैकबेथ टिल क्लास 12th, ओके। So if you love this video then don't forget to give this video a big thumbs up, subscribe my channel and press the bell icon as well. That's it guys, bye bye, stay tuned for more videos, bye guys.